ओके 20th पढ़ना है हमें। कौन रीडिंग कर सकता है? I can read, Mataji. ओके फाइन। ग्रंथेरारंभे कौरी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। पढ़िए। Only translation, Mataji? Only translations you have to read. Yeah. In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, the devotees of the Lord, and the personality of Godhead, I have invoked their benedictions. तो हमने देखा कि पिछले जो भी श्लोक हमने पढ़े तो कवि कृष्णदास कविराज ने प्रणाम किया गुरुओं को, है ना, भक्तों को और भगवान को, तो उससे उनकी कृपा प्राप्त हो रही है ना। अब आगे यहाँ से शुरू करेंगे। तीने रस्मरण होय विघ्न विनाशन, अनायासे होय निज वांछित पुराण। Such remembrance destroys all difficulties and very easily enables one to fulfill his own desires. तो दो चीजें होती हैं जब हम गुरु कृष्ण और भक्तों का स्मरण करते हैं तो हमारे विघ्न सारे विनाश हो जाते हैं, ऑल दी ऑब्स्टिकल्स आर ड्रिवन अवे, और वांछा की पूर्ति होती है। जो भी हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्तों को बोलते हैं, तो हमारे जो डिजायर्स हैं वो पूरे होते हैं। The invocation. से मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। The invocation involves three processes: defining the objective, offering benedictions, and offering obeisances. तो मंगलाचरण में क्या होता है? हम प्रणाम करते हैं और डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी हम क्या चाहते हैं, क्या कृपा याचना हम कर रहे हैं। हाँ प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोग। और जो हमें कृपा चाहिए उसको भी रिसीव करने के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे दुई ते प्रकार। The first two verses offer respectful obeisances, generally and specifically, to the Lord, who is the object of worship. तो प्रणाम करते हैं भगवान को जो who is the object of worship. That's clear. Okay. तृतीय श्लोके ते कौरी वस्तुर निर्देश, जहा होते जानी पर तत्वेरा उद्देश। पढ़िए माता जी। Mute हो गया था, I'm so sorry. Okay. In the third verse, I indicate the absolute truth, who is the ultimate substance. With such a description, one can visualize the supreme truth. चतुर्थ श्लोके ते कौरी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मागिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। In the fourth verse, I have invoked the benedictions of the Lord upon all the world, praying to Lord Chaitanya for his mercy upon all. तो सबको कृपा करें, सबके ऊपर कृपा करें चैतन्य महाप्रभु, ऐसी याचना की है। शेष श्लोके कही बाह्य अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। In that verse, I have also explained the external reason for Lord Chaitanya's incarnation. But in the fifth and sixth verses, I have explained the prime reason for his advent. तो एक्सटर्नल रीजन क्या था कि जो ये जो भगवान का प्रेम जो था वो देने के लिए, संकीर्तन मूवमेंट को, संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और हमने प्राइम रीजन भी पढ़ा। आई कांट रिकॉल फिफ्थ एंड सिक्स्थ में क्या था, मे बी विल जस्ट गो बैक एंड सी। फिफ्थ एंड
आप म्यूट करके साउंड कीजिए प्लीज, तो डिस्टरबेंस हो रही है. या so he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no other incarnation has offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Right? The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to them, who has manifested himself with the sentiment and the complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. And then the internal reason, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. तो ये तीन कारण थे कि चैतन्य महाप्रभु ने, ये इंटरनल कारण थे जिससे कि चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया. I'm sorry to go back. छह श्लोके कही चैतन्य तत्व, आर पंच श्लोके नित्यानंदे महत्व. बढ़िया. Sangeeta ji, mute, unmute. Sorry. In these 6 verses, I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5, I have described the glory of Lord Nityananda. और 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, और 1 श्लोक पंच तत्वेर व्याख्यान. The next 2 verses describe the truth of Advait Prabhu, and the following verse describes the Panch Tattva, the Lord, his plenary portion, his incarnation, his energies, and his devotees. हमने डिस्कस किया था कि पंच तत्वों में 5 तत्व कौन है. 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण. These 14 verses therefore offer auspicious invocations and describe the supreme truth. सब श्रोत वैष्णवेर कौरी नमस्कार, ए सब श्लोकेर करी अर्थ विचार. I offer my obeisances unto all my Vaishnava readers as I begin to explain the intricacies of all these verses. See the humility of Krishnadas Kaviraj, कि जो भी वैष्णव भक्त इसको पढ़ने जा रहे हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं. सकल वैष्णव सुन कौरी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण. I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention this narration of Shri Krishna Chaitanya as inculcated in the revealed scriptures. तो बोल रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए. पढ़िए purport. Please read the purport. Purport also. Okay, sorry. Lord Chaitanya is the absolute truth, Krishna himself. This is submitted by evidence from the authentic. Substantiated. Sorry. This is substantiated by evidence from the authentic spiritual scriptures. Sometimes people accept a man as God on the basis of their whimsical sentiments and without reference to the revealed scriptures. But the author of Chaitanya Charitamrita proves all his statements by citing the Shastras. Thus, he establishes that Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. Yes. तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र से एविडेंस देके कृष्णदास कविराज जो हैं वो प्रूव करेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी हैं. कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण इच्छाए रूपे करे न विलास.
Lord Krishna enjoys by manifesting himself as the spiritual masters, the devotees, the diverse energies, the incarnations, and the plenary portions. They are all 6 in 1. या तो भगवान अभिन्न है, जैसे हम सुबह मंगल आरती में भी गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। तो गुरु को हम क्या कह रहे हैं कि आप साक्षात हरि हो। तो एक्चुअली कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस एज इट इज रिपीट करने वाले गुरु को साक्षात हरि बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि गुरु, भक्त और भगवान की अनेक अनेक शक्तियां और भगवान के अवतार और भगवान के अवतारों के अवतार, ये जो है ये 6 मैनिफेस्टेशंस हैं और ये इनको एक ही समझिए, एक जैसा ही समझिए। मतलब यही 6 तत्वेर करी चरण वंदन, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। I therefore worship the lotus feet of these 6 diversities of the one truth by invoking their benedictions. Basically, Supreme Absolute Truth is one, but these 6 diversities are there. But they constitute the Supreme Absolute Truth, basically. Vande Gurun Isha Bhaktan, Isham Ishavatarkan, Tat Prakasham Stachat Shakti, Krishna Chaitanya Sangyakam. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Shri Krishna Chaitanya. Purport bhi padhiye. Okay. Krishndas Kaviraj Goswami has composed this Sanskrit verse for the beginning of his book, and now he will explain it in detail. He offers his respectful obeisances to the 6 principles of the Absolute Truth. Guru is plural in number because anyone who gives spiritual instructions based on the revealed scriptures is accepted as a spiritual master. Although others give help in showing the way to beginners, the Guru, who first initiates one with the Mahamantra, is to be known as the initiator, and the saints who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual masters. The initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestations of Krishna. Although they have different dealings, their function is to guide the conditioned souls back home, back to Godhead. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami accepted Nityanand Prabhu and the 6 Goswamis in the category of Guru. तो जब गुरुन बोलते हैं तो प्लूरल नंबर है, क्योंकि अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमा प्रदर्शक गुरु, और गुरुन ऑल्सो रेफर्स टू जो भी गुरु सारी परंपरा में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद अपने परपॉट में बता रहे हैं कि एक तो दीक्षा गुरु है जो हरे कृष्णा महामंत्र हमें देता है और फिर हमारा पुनर्जन्म होता है, हमें नया नाम मिलता है, तो दीक्षा गुरु होते हैं। और फिर होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो हैं जो अपने शिक्षाओं द्वारा, इंस्ट्रक्शंस द्वारा हमें कैसे इस पथ पे आगे जाना है उसकी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही लेवल पर हैं और वो आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कृष्णा के, ऑल्दो उनका डीलिंग्स डिफरेंट हो सकती है। Their function is to guide the conditioned souls back home, back to Godhead, right? Okay, आगे चलते हैं। Isha, shall I read? Continue reading. Continue, please.
Okay. Isha Bhaktan refers to the devotees of the Lord like Shri Srivasa and all other such followers who are the energy of the Lord and are qualitatively non-different from him. Isha Vatrankan refers to acharyas like Advait Prabhu, who is an avatar of the Lord. Tat Prakashan indicates the direct manifestation of the Supreme Personality of Godhead, Nityanand Prabhu, and the initiating spiritual master. Tat Chakrat refers to the spiritual energies, Shaktis of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhara, Damodar, and Jagadnanda belong to this category of internal energy. The 6 principles are differently manifested, but all equally worshipped. Krishan Das Kaviraj begins by offering his obeisances unto them to teach us the method of worshipping Lord Chaitanya. The external potency of Godhead, called Maya, can never associate with the Lord, just as darkness cannot remain in the presence of light. Yet, darkness being but an illusory and temporary covering of light, has no existence independent of light. है ना। तो जैसे हमने देखा ऊपर कि भगवान की चैतन्य कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं, वंदे गुरून ईश भक्तान। पहले गुरुओं को प्रणाम किया, फिर ईश भक्तान। ईश मतलब भगवान, भक्तान मतलब डिवोटीज। फिर ईशम यानी भगवान हिमसेल्फ, फिर ईश अवतार कान, भगवान के अवतार। जैसे यहाँ पे बताया अवतार कौन है हमारे पंचतत्व में, अद्वैताचार्य। और फिर तत्प्रकाशम यानी भगवान के प्रकाश, भगवान के प्रकाश यानी मैनिफेस्टेशंस, या दिस इज एक्सपेंशंस बेसिकली। तो प्रकाश कौन है? सबसे पहले जो एक्सपेंशन है वो है बलराम जी, है ना। एंड देन तत्शक्ति, शक्ति जैसे गदाधर, हाँ, कृष्ण चैतन्य संज्ञ काम। तो ये नाम है बेसिकली, ओके। सो ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इक्वल लेवल पे समझें, है ना। भगवान के साथ ये जो 5 चीजें हैं उनको हम इक्वल लेवल पे समझें। सो ये तरीका है कि हमें इस प्रकार से भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। भगवान, जब हम भगवान बोलते हैं, भगवान अकेले नहीं होते, है ना, भगवान के साथ साथ ये चीजें होती हैं। सो ये 6 फैक्टर्स क्या हैं, जस्ट टू रिवाइज। तो पहले गुरु, है ना, नंबर 1 पे गुरु, भगवान के भक्त, ऑल्दो सेम है, गुरु भी भगवान के भक्त हैं, बट वैष्णव इन जनरल। तो गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के अवतारों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के एक्सपेंशंस को प्रणाम कर रहे हैं, है ना, भगवान की शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो 6 फैक्टर्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट गॉड हेड। मंत्र गुरु और जत शिक्षा गुरु गण, ताहार चरण आगे करिया वंदन। I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my initiating spiritual master and all my instructing spiritual masters. तो इनिशिएटिंग मतलब एक होता है इनिशिएटिंग, दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। तो सबको प्रणाम कर रहे हैं। यस, परपॉट पढ़िए। Srila Jeev Goswami, in his thesis Bhakti Sandarbha 202, has stated that uncontaminated devotional service is the objective of pure Vaishnavas, and that one has to execute such service in the association of other devotees. By associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus becomes inclined towards the loving service of the Lord. This is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotional service. If one desires unalloyed devotional service, one must associate with devotees of Shri Krishna, for by such association only
can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of the specific transcendental mellow ras that one has eternally inherent in him. If one develops माता जी वेट प्लीज। तो यहाँ पे भक्तों के संग का बहुत इम्पोर्टेंट जो इतना इतना महत्व है उसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे हम अपने आप को ही ले लें, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आए थे तो हमें ये पता ही नहीं था कि हम आत्मा है और हमारा जीवन का गोल क्या है। तो ये बोला जाता है कि चाहे हम नियोफाइट यानी कि एकदम नीचे के लेवल के भक्त, जो नौसिखिए भक्त हैं उसके लेवल पे हो, चाहे ऊंचे सन्यासी के लेवल पे भी हो, भक्तों का संग बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा भक्तों के संग में ही भक्ति होती है। तो जैसे प्रभुपाद ने लिखा, इफ वन डिजायर्स अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस वन मस्ट, अनअलॉयड जानते हैं सब लोग, बिना मिक्सचर की, अहेतु की, अप्रतिहता, जिसमें कुछ मिश्रण ना हो बेसिकली, है ना। तो भक्तों से भगवान के भक्तों का संग करना है। अब भगवान का प्रेम भगवान के पास नहीं है, भगवान के भक्तों के पास है, भक्तों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो this is very very important that we associate with devotees so that we can revive our relationship with Krishna. Please continue. Yeah. If one develops love for Krishna by Krishna conscious activities, one can know the supreme absolute truth. But he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get a taste for unalloyed devotion. The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by the perceptor. A devotee already attracted by the name, form, qualities, etc. of the Supreme Lord may be directed to his specific manner of devotional service. He need not waste time in approaching the Lord through logic. The expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in the transcendental loving service of the Lord. And thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his special tendency. A devotee must have only one initiating spiritual master, because in the scriptures, acceptance of more than one is always forbidden. There is no limit, however, to the number of instructing spiritual masters one may accept. Generally, a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiating spiritual master later on. Okay. So, तो लॉजिक से भगवान को नहीं अप्रोच किया जा सकता। भगवान ने भगवत गीता में क्लियरली बता दिया, भक्त्या मामा बजानाति, है ना। भक्ति के प्रोसेस के द्वारा ही भगवान को अप्रोच किया जाता है। हम सोचें कि हम ग्रंथों को पढ़ के अपनी रिसर्च से या लॉजिक से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है या जाना जा सकता है, और वो कृपा तब प्राप्त होती है जब हम भक्ति करते हैं। तो और जो दीक्षा गुरु के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद कि दीक्षा गुरु जो है बहुत एक्सपर्ट होता है। वो जानता है कि ये जो डिवोटी है उसको कैसे किस सेवा में लगाएंगे तो उसको वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, वो रिलिश कर पाएगा। तो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमारे गुरु हमको सेवा देते हैं। तो और जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है ना। One should always remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. One who is not properly initiated may present himself as a great devotee.
But in fact, he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his term of material existence without relief. Such a helpless person is compared to a ship without a radar. For such a ship can rudder, sorry. For such a ship डायरेक्शन देता है ना? Yeah. Okay, rudder, sorry. For such a ship can never reach its destination. It is imperative, therefore, that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. The service of the spiritual master is essential. If there is no difference between the spiritual master's instruction, there is no chance to serve the spiritual master directly. A devotee should serve him by remembering his instructions. There is no difference between the spiritual master's instruction and the spiritual master himself. In his absence, therefore, his words of directions should be the pride of the disciple. If one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Lord. Such an offender can never go back to Godhead. It is imperative that a serious person accept a bona fide spiritual master in terms of the Shastric injunctions. Shri Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social and ecclesiastical conventions. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. Yeah, thank you. Can someone look up this one in the dictionary? Ecclesiastical. Okay, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है उन लोगों के लिए जो कि गुरु नहीं एक्सेप्ट करते, है ना, या बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, हम तो डायरेक्टली गुरु के पास, हमें डायरेक्टली हमारा कृष्ण से संबंध है, हमें क्या आवश्यकता है गुरु की। तो उनके लिए यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला है कि कैसी शिप है, जैसे जिस शिप में रडर नहीं हो। रडर वो होता है जिससे डायरेक्शन, शिप का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड किया जाता है ना, कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि स्ट्रेट जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टन जो है वो इस रडर को ही मैनेजेस इट। तो ऐसी जिस शिप का कोई रडर ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो कहाँ से पहुंच पाएगी। तो so we have to have a guru. इनफैक्ट आप देखिए जब कृष्णा भी आते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, चाहे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला की तो ईश्वरपुरी को गुरु उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब कृष्ण की लीला में उन्होंने संदीपनी मुनि को अपना गुरु एक्सेप्ट किया। राम, जब लॉर्ड राम भी बन के आए थे तो भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। क्या भगवान को एजुकेशन की जरूरत है? ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज, स्टिल ही इज टेकिंग शेल्टर ऑफ अ गुरु टू एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि गुरु से दीक्षा लेना और गुरु की सेवा करना अनिवार्य है, उसके बिना हमारी भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो फिर कोई सोचे कि गुरु तो पुरुष के शरीर में है और गुरु को तो मैं डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकती हूँ जाके, तो कैसे मैं सेवा करूं। तो गुरु की दो प्रकार से सेवा होती है, वापु सेवा यानी शरीर की सेवा और वाणी सेवा यानी कि उनके इंस्ट्रक्शंस की सेवा। तो दोनों सेम है, ये मत समझिए कि एक ज्यादा सुपीरियर है दूसरे से। वाणी सेवा इनफैक्ट प्रभुपाद यूज्ड टू से इन अदर लेक्चर्स आई हैव सीन कि वाणी सेवा और भी ज्यादा जरूरी है, बापू सेवा से भी ज्यादा जरूरी है वाणी सेवा, क्योंकि जो डिजायर है स्पिरिचुअल मास्टर के उसको पूरा करने के लिए वाणी सेवा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर गुरु की प्रेजेंस नहीं भी है तो गुरु वाणी की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु के लेक्चर्स सुनने चाहिए, और वो किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद को सेवा करना चाहते हैं, किस प्रकार से वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो
उनसे वो मूड लेके हमें वही वही चीजें करनी चाहिए जो उनको प्रसन्न करें। तो अगर कोई सोचे कि मैं तो गुरु से बहुत ऊपर हूं, मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ गुरु से, तो ऐसा व्यक्ति तो अपराधी है, वो कभी भगवान के धाम नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे शास्त्र कह रहे हैं उस प्रकार से ही हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए। और कैसे बता रहे हैं कि जैसे हेरिडिटरी गुरु नहीं होना चाहिए कि हम तो हमारा तो जन्म इसी परिवार में हुआ तो हम तो नित्यानंद संप्रदाय के हैं और हम तो ऑलरेडी इनिशिएटेड बाय नित्यानंद प्रभु हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। वी शुड फाइंड अ जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर। तो 4 बोनाफाइड परंपराएं हैं, उनसे हमें स्पिरिचुअल मास्टर उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। मैं ना चैट मैसेजेस पढ़ नहीं पाती, अगर आपने लिखे हैं ना तो 3 मैसेजेस मैं देख रही थी, बट आई एम नॉट एबल टू ओपन देम। हरे कृष्ण माता जी, मीनिंग भेजा था। अच्छा, ओके। इट मीन्स रिलेटिंग टू क्रिश्चियन चर्च और इट्स क्लर्जी, यही था मीनिंग, प्रीस्टली। Okay, all right. So we'll stop the share right now. Okay. Thank you, Juhi. All right. तो और किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है? Anything anyone wants to say? Yes, Vimla Mataji, please. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। No. माता जी, जो 34 इससे पहले वाला 34 था ना, उसमें ईशा भक्तम, वो पैरा थोड़ा एक बार आप थोड़ा आराम से बता दें, समझ पास में थोड़ा समझ पाऊंगा। ईश भक्तान का मीनिंग आप समझ लिए। ईश मतलब भगवान और भक्तान मतलब भक्त, है ना, भगवान के भक्त, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीवास ठाकुर का। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हम बोलते हैं ना, तो ऐसे अनेक अनेक भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ये पूरा पैरा में जैसे एंड तक जाएंगे ना, तो तत्प्रकाशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ईश भक्तान हो गया, फिर सेकंड उसमें है ईश अवतार कान। तो अवतार, ईशा मतलब भगवान, अवतार मतलब भगवान के अवतार। जैसे अद्वैत प्रभु, आप जानती हैं कि अद्वैत प्रभु महाविष्णु हैं, तो अवतार है भगवान के। तो फिर तत्प्रकाशान मतलब डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब एक्सपेंशन, है ना, भगवान के एक्सपेंशन। तो बलराम जी क्या है? बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन है भगवान के, जो भगवान के जैसे ही हैं, उनका थोड़ा बस कम्प्लेक्शन डिफरेंट है और क्या मूड डिफरेंट है। वो सेवक भगवान है बलराम जी। तो ये तत्प्रकाश, तो प्रकाश है ना, तो तत्प्रकाशान उसको बोला गया। और फिर तत्शक्ति बोला गया, है ना, उनकी शक्ति। शक्ति कौन सी है? गदाधर प्रभु, है ना। और यहाँ पे दामोदर पंडित जो ललिता है, आप जानते हैं कि गदाधर जो है वो राधा रानी है, दामोदर जो है वो ललिता है, रामानंद राय विशाखा है, जगदानंद पंडित सत्यभामा है ना। ये सब इंटरनल एनर्जी में आ गए भगवान के। तो तत्शक्ति, है ना माता जी, तो ये इनको रेफर किया गया है। ठीक है, सब मतलब ईशा भक्तान है ये सब जो है? नहीं सारे नहीं है, नहीं माता जी। ईशा भक्तान नारद मुनि हो गए, भक्त भगवान के। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं? ईश भक्तान मतलब भगवान के भक्त। सेकंड चीज क्या डिस्कस हुई है? ईश अवतार कान मतलब भगवान के अवतार। फिर तत्प्रकाशान तीसरी चीज डिस्कस हुई है यहाँ पे, भगवान के प्रकाश अवतार यानी डायरेक्ट एक्सपेंशन नित्यानंद प्रभु। फिर तत्शक्ति चौथी चीज डिस्कस हुई है यहाँ पे, भगवान की शक्तियां, जो ये सब है ना। ठीक है, ठीक है ठीक। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। सत्यभामा कौन है इसमें? चैतन्य चरितामृत, जगदानंद पंडित। ओके, थैंक यू माता जी। और किसी का कुछ कमेंट या क्वेश्चन?
ओके, थैंक यू सो मच। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हम चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।